So next है बेटा, next term is coordination number. Coordination number. Coordination number क्या होता है? It is the number of atoms of ligands. Number of atoms of ligands which are directly attached to the metal atom. Number of atoms of ligands which are directly attached to the central metal atom. We know that in coordination compounds there is coordination sphere in which ligands are there which are attached to the central metal atom. Like suppose I have this coordination sphere. I am showing the coordination sphere only, not the counter ions. Here the central metal atom is silver and the ligand is cyanide ion. Okay. So coordination number is, I am writing coordination number as Cn. Coordination number is 2 beta. Why 2? You will say मैम Cn 2 है तो इसलिए coordination number 2 है. आपने बेटा लीगेंड का नंबर नहीं काउंट करना, आपने लीगेंड में ये देखना है कि कितने एटम्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन हो रही है. जो आपका साइनाइड आयन होता है ना वो यूनिडेंटेट लीगेंड है. कौन सा लीगेंड है? व्हाट इज यूनिडेंटेट लीगेंड? वी डिस्कस वन टर्म विच इज कॉल्ड डेंटिसिटी. डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी इज द कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेटिंग एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द लीगेंड. In one cyanide there will be one coordinating atom. So in total there are two coordinating atoms. That is why coordination number is 2. I will give you one more example. Let us write one more. With the help of this third one, the concept will be more clear. Yes. Now let us focus on this example. Here central metal atom is copper and 4 NH3 molecules are there which are acting as a ligand. In one NH3 there is one coordinating atom. So total number of coordinating atoms are 4. So we will say its coordination number is 4. Now let us see this third example. Beta, the ligand is C2O4 2 negative. Do you remember the ligand? It is oxalate. Oxalate है ये. In oxalate, it is a bidentate ligand. In one molecule of ligand, there are two coordinating atoms. So total molecules we have 3. In one molecule, there are two coordinating atoms. In 3 molecule, there will be 6 coordinating atoms. So coordination number will be 6 for this compound. It will not be 3. बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिख देते हैं, बट कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 3 नहीं है, 6 है. क्यों 6 है? क्योंकि इन वन लिगेंड देयर आर टू कोऑर्डिनेटिंग एटम. सो वी हैव टू सी number of atoms, total atoms of ligands which are directly attached to the central metal atom. So total atoms are 6 here. So coordination number is 6. Is it clear? यादविंदर, नोट कर लिया? नो मैम. तो लिख ले फटाफट. All these terms now they will be used further in the chapter. The next term is ambidentate ligands.
we will discuss here that what is the meaning of ambidentate ligands. But ambidentate ligand, they are those ligands which can form coordinate bond through two different atoms. Actually, the point is they are Different side. 2 मिनट रुक जा, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं. They are unidentate ligand. Unidentate का मतलब क्या है कि in one molecule there will be only one coordinating atom. But their speciality is, like suppose I have the cyanide ion. You know that cyanide ion is a unidentate ligand. What is the meaning of denticity? That in one molecule there will be one coordinating atom. Then what is the meaning of ambidentate? बेटा ambidentate का मतलब होता है कि हैं तो ये unidentate, but उनके पास they can coordinate either through carbon also, they can coordinate either through nitrogen also. एक टाइम में एक ही कोऑर्डिनेट करेगा बट ऑप्शन दोनों है. सिमिलरली और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे NO2 नेगेटिव है, क्या है वैसे, ये होता तो नाइट्राइट आयन है ना, बट ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड की एग्जांपल है. देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. इट कैन आइदर कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन, इट कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट थ्रू दिस ऑक्सीजन. कोऑर्डिनेट विद व्हाट? कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल एटम. So please focus here that NO2 negative is a unidentate ligand. In one time it will coordinate only through one atom. But the atom can either be nitrogen, it can either be this oxygen. So they are the unidentate ligand containing more than one donor atom. But at one time it will coordinate only through one donor atom. Like oxalate है, इसको हम ambidentate नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो एक ही में दो हैं. ऐसा थोड़ी है कि उसके पास है तो एक, बट वो एक टाइम पे एक से कर रहा है, एक टाइम से वो दो से कर रहा है, तो ये एम्बिडेंटेड नहीं है. एम्बिडेंटेड का मतलब है कि इट विल बी यूनिडेंटेड बट उसके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है. समझ में आया? Yes. सिमिलरली जो साइनाइड है, इट कैन आइदर कोऑर्डिनेट थ्रू कार्बन, इट कैन आइदर कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन. बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. ये वाला है, इसको थायोसाइनेट आयन बोलते हैं. इट कैन आइदर कोऑर्डिनेट थ्रू सल्फर, इट कैन आइदर कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन ऑल्सो. तो जब पता कैसे चलेगा कब किसके थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उनके डिफरेंट नाम्स होते हैं, वो हम करेंगे. लाइक सपोज वी हैव द केस ऑफ नाइट्राइट आयन. व्हेन इट इज कोऑर्डिनेटिंग थ्रू एन, इट इज कॉल्ड नाइट्राइटो. N. When it is coordinating through O, it is called nitrito O. Why I am using nitrito instead of nitrite? I will explain this later on. So just write down ambidentate ligand क्या होते हैं. Unidentate ligands, write down their definition. Ambidentate ligands क्या हैं? They are the unidentate ligands containing more than one donor atom. Unidentate ligand containing more than one donor atom, but at one time it can coordinate, but at one time it can coordinate through one donor atom. So what are ambidentate ligand? They are the unidentate ligand containing more than one donor atom, but at one time they will coordinate only through one donor atom. In example, write this. ये दोनों लिख लेना. You can write cyanide as an example, also thiocyanate. Write down various examples. So ligand क्या होते हैं? जो लुईस बेस एक्ट करते हैं, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड.
And ligand can be classified on the basis of their denticity, means how many coordinating atoms are there per ligand. They may be unidentate, they may be bidentate, they may be polydentate. In polydentate, we discussed lot of example with denticity 3, 4, 5, 6. Then we discuss chelating ligand, then what is coordination number, then what is ambidentate ligand. Ambidentate बेटा बहुत आता है क्वेश्चन. लिख लिया? Yes, ma'am. Now the next is oxidation state of metal atom. What is the meaning of oxidation state of metal atom? Actually, it is a charge carried by the central metal atom. Like suppose we have this compound. मैं अभी इनके नाम नहीं लिख रही हैं, अभी मैं नाम लिखने सिखाऊंगी इनके. तो अब ये देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. हमने किया था ना कि ये जो पोटाशियम है ये काउंटर आयंस है, एंड ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये, और इसको कोऑर्डिनेशन सफियर भी बोलते हैं. अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम बेटा कौन सा आयरन है? सेंट्रल मेटल एटम कौन सा आयरन है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है हमें. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? मींस इट इज कैरिंग हाउ मच चार्ज. लेट अस सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज एक्स. ना पोटाशियम पे कितना चार्ज होता है? +1 होता है. बट पोटाशियम टोटल इन दिस कंपाउंड देयर आर 3 पोटाशियम, सो टोटल प्लस चार्ज विल बी +3. सो स्क्वायर ब्रैकेट में चार्ज -3 है टोटल. एंड साइनाइड पे बेटा एक पे -1 चार्ज होता है. अब ये तुझे याद हो जाएंगे प्रैक्टिस से कि कौन से लिगेंड न्यूट्रल हैं, कौन से लिगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. लिगेंड या तो न्यूट्रल होते हैं या नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं बट रेयर होते हैं, क्योंकि देख नेगेटिव चार्ज है ओनली देन दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द मेटल ना. या न्यूट्रल होंगे तो उनके पास लोन पेयर होगा. तो साइनाइड नेगेटिवली चार्ज्ड है. कितने साइनाइड हैं? 6 हैं. एक के पास कितना नेगेटिव चार्ज है? -1. ओवरऑल चार्ज कितना है? -3. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +3. इसका मतलब इस कंपाउंड में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3. इज इट क्लियर? समझ में आई? Yes, ma'am. So the oxidation state of metal is the charge carried by central metal atom. Is the charge carried by central मेटल एटम. एग्जाम्पल ये लिख लेना, और आयरन को हमने एक्स सपोज किया और ये सारा लिख लेना. Written. When we write the names ना, the oxidation state is written in Roman actually. मैं बताऊंगी कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं. Now there is one more term बेटा, ये भी कई बार आ जाती है पेपर में. The term is coordination polyhedra या पॉलीहेड्रन भी बोलते हैं. Now coordination polyhedron क्या होता है बेटा? Actually it is a spatial arrangement of ligands around the central atom. तो ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली प्रेजेंट होंगे, उनका कुछ पर्टिकुलर अपनी ज्योमेट्री रहती है. जैसे कई बार ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रन बनाते हैं वो. 4 लिगेंड्स हैं, टेट्राहेड्रन जो शेप होती है, तो हम बोलते हैं कि पॉलीहेड्रन कौन सा है? टेट्राहेड्रन बन रहा है. कई बार ऑक्टाहेड्रन बन रहा होता है with 6 ligands. I am using the word octahedron, but I am saying 6 ligands. You know this? Octahedron बेटा actually shape बन जाती है which has 8 sides. 8 sides होते हैं जिसके कारण इसको octahedron नाम दिया जाता है.
So what is coordination polyhedron? It is the spatial arrangement of ligands. Spatial means space में. Spatial arrangement of ligands which are directly attached to the central metal atom. समझ में आया बात? तो कॉमन कौन कौन से हो सकते हैं? दे में बी टेट्राहेड्रन, मतलब कौन सी शेप बनाएगा उसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलते हैं. दे में बी टेट्राहेड्रन, दे में बी ऑक्टाहेड्रन. It may form square planar geometry also. Like in +1 there is a chapter called chemical bonding ना, उसमें जैसे हम shapes पढ़ते थे तो इसके भी particular shapes होते हैं depending upon the hybridization and all those concepts. So what is coordination polyhedron? It is a, you can simply say it is a spatial arrangement of ligands around the central metal atom. Note it down. Okay, done. हो गया? चल. Yes, ma'am. Now next term बेटा, होमोलैप्टिक. तेरे एग्जाम्स कब हैं? After 21. तो स्कूल में होंगे ना तेरे तो? स्कूल में भी होंगे, ऑनलाइन भी होंगे. अच्छा, तो नेक्स्ट टर्म है बेटा होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. बहुत सिंपल है. इसमें क्या डिफरेंस होता है? होमोलैप्टिक बेटा वो वाले होते हैं जिसमें सारे लिगेंड सेम होते हैं. जैसे देख, सपोज दिस इज द एग्जांपल. एक एग्जांपल ये लिखा है मैंने, एक मैं अभी और लिख रही हूँ. ये जो बेटा दो एग्जांपल्स लिखे हैं, इस दोनों एग्जांपल से हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक. जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, इट इज द केस ऑफ होमोलैप्टिक. नाउ अब बता मुझे, कोऑर्डिनेशन इसमें से फियर कौन सा, ये वाला? कोऑर्डिनेशन से फियर में एक तो मेटल होता है, एक लिगेंड्स होते हैं. तो इसमें 6 लिगेंड है, 6 के 6 लिगेंड सेम है, NH3 है. अब इस केस में आ जा, इसमें भी टोटल 6 लिगेंड है, 4 NH3 के हैं, 2 Cl के हैं. तो ये हेट्रोलैप्टिक है. हेट्रोलैप्टिक मतलब जिसमें सारे लिगेंड सेम नहीं होते वो हेट्रोलैप्टिक है. जिसमें सारे लिगेंड सेम होते हैं दैट इज कॉल्ड होमोलैप्टिक. समझ में आया? Yes, ma'am. So very simple. So write down homolaptic complexes is that homolaptic complexes are those in which central metal atom is bounded to only one kind of ligands. Only one kind of ligand. एग्जाम्पल में ये वाला लिख लेना. एंड हेट्रोलैप्टिक में ऑपोजिट हो जाएगा. हेट्रोलैप्टिक complexes are those in which central metal atom is, what should I write, is bounded to more than one type of ligands. More than one type of ligands. एग्जाम्पल में ये वाला लिख लेना.
चैप्टर वैसे काफी इजी है, साथ साथ में करते जाना, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो बट ये सारा डायरेक्टली बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगेंड, गिव एग्जांपल, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, व्हाट इज डेंटिसिटी, डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। डन मैम। Now we are going to study about their nomenclature. Like in organic chemistry, there is nomenclature of organic compound. Na? In coordination compounds, there is also one topic, coordination compounds का naming. It is called nomenclature of coordination compounds. मैम हाँ, मैम एक वो नहीं होती मैम जो रिंग को बनाते हैं, chelating क्या कहते ligand. हैं? यस मैम। हाँ, तो क्या हुआ? उस वो ही आता है पेपर में। हाँ, सब कुछ, हाँ, कुछ भी आ सकता है बेटा, तभी तो हम सारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेटा डिस्टर्बेंस आ रही है, तू म्यूट कर दे अपना माइक, चैट से बात कर ले। अच्छा, इनको नेम कैसे करना है, वो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जैसे आईयूपी एक्ट में ऑर्गेनिक में कुछ रूल्स होते हैं नेमिंग के, वैसे ही इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या है? द रूल नंबर 1 इज द cationic पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट। द cationic, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं हम। द cationic पार्ट इज named first and then the anionic part. पहले इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मैं तुझे एक और पॉइंट बताऊंगी। लाइक सपोज देख बेटा, ये एग्जांपल है हमारे पास, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। अब ये डिपेंड करता है, काउंटर आयंस में बी पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव। लाइक हियर काउंटर आयंस आर पॉजिटिव। इफ आई राइट दिस एग्जांपल, हेयर काउंटर आयंस आर नेगेटिव, तो जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा, आइदर द केटायनिक पार्ट में जो पॉजिटिव पार्ट है, द पॉजिटिव पार्ट कैन बी काउंटर आयंस और द पॉजिटिव पार्ट कैन बी सफियर। लाइक इन दिस केस सफियर इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज and counter ions are having negative charge, while in this case counter ions are having positive charge and sphere is having negative charge. Whatever may be the case, we have to write positive part always first. लाइक इन दिस केस, फर्स्ट केस में जो नेमिंग स्टार्ट होगी वो पोटाशियम से शुरू होगी। पोटाशियम लिखने के बाद हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट वाले का नाम लिखेंगे, और इधर नेमिंग पहले स्क्वायर ब्रैकेट वाले का नाम लिखना पड़ेगा, पीछे क्लोराइड लिखेंगे। समझ में आई ये बात? यस मैम। तो लिखता जा फटाफट साथ साथ। हमें फर्स्ट रूल पता चल गया कि whenever we have to name the coordination compounds, we must write the positive part name before the negative part name. रिटन मैम। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। यस,
So first rule is clear. Now second rule. Second rule is about naming the coordination sphere. Now what is the coordination sphere? The part which we use to write in square bracket. The part which is having metal atom and the ligands. तो अब हमने देखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आगे हम कैसे नेम लिखते हैं उसमें, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, इन दिस केस दिस PtCl6 इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो इसमें बेटा होता क्या है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो लिगेंड होते हैं, एक इसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है। सो ऑलवेज टेक केयर दैट वी हैव टू राइट द लिगेंड फर्स्ट देन द नेम ऑफ मेटल एटम। सो व्हाट इज द पॉइंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, रूल कोई बेटा एज सच पूछे नहीं जाते, मैं इसीलिए लिखवा रही हूँ ताकि तेरे पास नोट्स बन जाए प्रॉपर। तो रूल्स तुझे सिर्फ माइंड में रखने हैं, क्वेश्चन सीधा आएंगे कि तुझे कंपाउंड दे दिया जाएगा और नाम लिखना होगा, या नाम दे दिया जाएगा कंपाउंड बनाना होगा। सो इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ligands are named first then the metal atom। अब मैंने लिख दिया बट अभी तुझे इतना समझ में नहीं आएगा, जब मैं इनका नाम लिखूंगी तब तुझे समझ में आएगा। देख मैं थोड़ा सा तुझे आइडिया देती हूँ। पहले हमने रूल किया था कि पॉजिटिव पार्ट पहले लिखना है, तो पोटाशियम। उसके बाद लीगेंड कौन है बेटा, इसमें Cl लीगेंड एक्ट करता है, एक्चुअली इट इज नेगेटिव लीगेंड, Cl नेगेटिव होता है, मैं कराती हूँ अभी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं हेक्सा क्लोरो या क्लोराइडो प्लैटिनेट। अब तुझे बड़ा अजीब अजीब लग रहा होगा कि मैम ने क्या लिखा है ये, बट तू अभी सिर्फ ये समझ कि ये जो पार्ट था इसमें मैंने पहले प्लैटिनम से पहले मैंने क्लोराइडो लिखा है, मतलब लीगेंड का नाम मैंने मेटल एटम से पहले लिखा है, ये रूल बोलता है। समझ में आई? यस मैम। तो मैंने प्लैटिनम को प्लैटिनेट क्यों लिखा है और Cl को क्लोराइडो क्यों लिखा है, वो सारे रूल्स हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसको नोट कर ले फटाफट। तो दो रूल्स हो गए अभी तक कि हाउ टू राइट देयर नेम्स। फर्स्ट रूल इज वी हैव टू राइट द पॉजिटिव पार्ट बिफोर नेगेटिव पार्ट। Second rule, during the naming of the coordination sphere we have to write ligand before the metal atom। Done? यस मैम। अगर इन हिट्रोलिटिक हो मैम? हाँ तो भी कर सकते हैं, मैं सिखाऊंगी ना एक एक करके, अभी टेंशन ना ले, तो सारा कुछ कवर होगा। नाउ अब हमने नेम ऑफ लीगेंड देखना है कि लीगेंड्स को कैसे नेम लिखते हैं, उसी में तेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इफ इट विल बी हेट्रोलैप्टिक व्हाट विल हैपन, देन वी विल यूज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो नेम ऑफ लीगेंड कैसे लिखना बेटा, तो लीगेंड मैंने तुझे बोला था लीगेंड में बी पॉजिटिव, they are usually negative or neutral. In some cases there are positive, 2-3 example of positive ligands are there. So ligands can be negative, neutral और positive, ब्रैकेट में लिख लेना sometimes। अब नेगेटिव लिगेंड्स मतलब एनायनिक है ना, एनायनिक। तो पहले हम एनायनिक लिगेंड की लिस्ट लिखेंगे कौन सी है, और एनायनिक लिगेंड्स को लिखते कैसे हैं वो हम लिखेंगे। एनायनिक लिगेंड या हम नेगेटिव लिगेंड भी बोल सकते हैं। आगे बेटा
Anionic ligand, they can be unidentate, they can be bidentate, they can be polydentate. Now I'm going to give you a list of anionic unidentate ligands. Now what are anionic unidentate? क्या होता है यादविंदर? Which have denticity 1. Denticity 1 means if I am writing one molecule of the ligand, it will have only one donor atom. So always remember, in case of negative ligand, or you can say anionic ligand, their name will end in O. What is the meaning? Let me explain. But आप इतना लिख लो, the name of anionic ligand ends in O. इसका मतलब क्या? Like suppose there is one ligand, बेटा H negative acts as a ligand. Usually इसका नाम नॉर्मल नेम भी हमें आना चाहिए. नेम ऑफ H negative is hydride ion. क्या नेम होता है? हाइड्राइड आयन इसका नाम होता है. बट हम जब लिखते हैं, जब हम नाम लिखेंगे तब हम उसे हाइड्राइड नहीं लिखते, हम उसे हाइड्राइडो लिखते हैं. इट इज़ अ रूल दैट व्हेन देयर आर नेगेटिव लिगेंड, एंड में हम ई को रिप्लेस करके ओ डाल देते हैं. समझ में आई मेरी बात? O2 नेगेटिव है. O2 नेगेटिव को क्या बोलता है तू? ऑक्साइड आयन बोलते हैं हम लोग. बट व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ लिगेंड, इसको क्या लिखना? ऑक्साइडो. सिमिलरली OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है, बट इसको क्या लिखना है? हाइड्रोक्साइड लिख के फिर एंड में ई की जगह ओ लिखना है. हाइड्रोक्साइडो, ओ आ जाएगा एंड में. हाइड्रोक्साइड को ओ, ई काट के ओ. कई बार हाइड्रोक्सो भी लिखते हैं. ऑक्साइडो को ऑक्सो भी लिख देते हैं, बट बेटर वर्ड इज ऑक्साइडो. समटाइम्स ऑक्सो भी लिख देते हैं. धन्य मैम. S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन, इसको सल्फाइडो. ये सारी लिस्ट है, इसको एज सच क्रैम करने की ज़रूरत नहीं इतनी होती. थोड़ा सा माइंड में रखना, याद हो जाते हैं अपने आप. X negative for halogen, like suppose we have Cl negative, we have F negative, we have Br negative, I negative. All these are ligand beta. Like chloride, so normal name is chloride ion, fluoride ion, bromide ion, iodide ion. We will use chlorido, fluorido, bromido, iodido. So in general I can write halido. समझ गया ना कैसे? क्लोराइडो, फ्लोराइडो, and so on. Sometimes it is also written chloro. क्लोरो, फ्लोरो. सो डोंट गेट कंफ्यूज. कभी क्लोरो लिखा आ जाए तो फिर देखे ये क्या है, वो क्लोराइडो की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज SO4 2 नेगेटिव. इट इज सल्फेट आयन, इट इज कॉल्ड सल्फेटो. क्या लिखते हैं इसको? सल्फेटो. सल्फेट की ई हटाई, ओ लगाया, सल्फेटो. SO3 नेगेटिव को, SO3 2 नेगेटिव कौन सा आयन होता है? It is called sulfite ion, and its name when it acts as a ligand is sulfite 2. NO3 negative is, ये भी यूनिडेंटियल है. हाँ ये सारे यूनिडेंटेट हैं. यूनिडेंटेट चार्ज से नहीं देखते, कंफ्यूज मत हो जाना. यूनिडेंटेट मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं. जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चलता है कि एक ही डोनर एटम होता है. इनमें सारे यूनिडेंटेट ही हैं ये. समझ गया? अब नाइट्राइट है, इसको क्या लिखेगा? नाइट्रेटो. क्या लिखेंगे? नाइट्रेटो. 1 minute. नाइट्राइट, नीट इज नाइट्रेट. NO3 लिख रहे हैं ना, रुक जा अभी. नाइट्रेटो, ए आएगा.
What is the name of N3 negative? It is called nitride ion. तो इसका नाम बन जाएगा नाइट्राइडो. एंड सो ऑन. और लिखवा देती हूँ मैं तुझे, फटाफट लिख ले. लिख लिए सारे? यस मैम. और लिख ले दो चार. बेटा एक ये आयन होता है, ठीक है, इसका नाम एमाइड आयन होता है, तो वैसे इसको बोलते हैं एमाइडो. जब लिगेंड एक्ट करेगा तो एमाइडो. सिमिलरली NH2 नेगेटिव आइमाइडो. ध्यान रखना है कब ए डालना है. जब NH2 1 माइनस है तो एमाइडो, NH2 माइनस है तो आइमाइडो. कार्बोनेट को लिखेंगे कार्बोनेटो. कार्बोनेट को कार्बोनेटो. H2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फेट आयन होता है, इसको लिखेंगे थायोसल्फेटो. क्या लिखेंगे? थायोसल्फेटो. डन मैम. बाकी कोई और एक्स्ट्रा आएगा तो ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है. अच्छा चल एक और लिख ले. ये क्या होता है? H2 नेगेटिव होता है सल्फाइड आयन, ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइडो. बस जो नॉर्मल नाम है उसमें ई हटा के वो लगा देना, और कुछ नहीं है. नॉर्मल नाम तो आता ही होता है. इसका एक और नाम भी है, इसको मरकैप्टो भी बोलते हैं. HS-1 को मरकैप्टो भी बोलते हैं. लिख लिया? यस मैम. अब देखिए यूनिडेंटेड थे, अब नेगेटिव वाले बाइडेंटेट की भी लिस्ट होती है. बाइडेंटेट लिगेंड्स, तो उनमें ऑक्सोलेटो आ जाएगा. ऐसे ये ऑक्सोलेट आयन होता है, बाइडेंटेट है, इसको ऑक्सोलेटो बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में OX लिखते हैं बेटा, ऑक्सोलेटो. और लिखने लगी हूँ मैं. और एक होता है ACAC. अभी ACAC क्या है? इट इज एसिटाइल एसिटोनेटो. एसिटाइल एसिटोनेटो. इट इज CH3. हरी का स्ट्रक्चर याद करने की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आइडिया के लिए मैं स्ट्रक्चर तुझे लिखवा रही हूँ. ये होता है इसका एसिटाइल एसिटोनेटो. इसमें ये दोनों डोनर एटम है, बाइडेंटेट है ना ये. और एक होता है बेटा DMG, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो. डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो. इसका है CH3. स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. ठीक है, समझ आ रही है? एक और होता है दैट इज ग्लाइसिनेटो. इसको GLY लिखते हैं, ग्लाइसिनेटो को. CH2 NH2, ये सारे बाइडेंटेट वाले हैं. एक N डोनर है, एक O नेगेटिव जो है वो डोनर है. समझ आ रही है बेटा?
देख रहा है कि नेगेटिव में हमें O के साथ हैंड करना होता है। नोट कर लिया? यस। अब है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड भी काफी होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी हमने लिस्ट पढ़नी है। तो न्यूट्रल में हम पहले यूनिडेंटेट कर लेते हैं। NH3, H2O, NO, CO, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड pyridine, C5H5N। क्या लिखा है ये मैंने? C5H5N। अब NH3 का नाम क्या है? एमीन। अमोनिया नहीं लिखते इसको, एमीन लिखते हैं। H2O को एक्वा लिखते हैं जब लिगेंड एक्ट करता है। NO को नाइट्रोसाइल, CO को कार्बोनाइल। इसका नॉर्मल नाम ही है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसका नाम pyridine। pyridine को PY भी डिनोट करते हैं। याद रह जाएगा, एक्वा लिखना है, वाटर मत लिख के आ जाना, और अमोनिया नहीं लिखना, उसको एमीन लिखना है। दे आर यूनिडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। नाउ बाइडेंटेट और यू कैन से डाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। वन मोस्ट प्रोमिनेंट लिगेंड इज EN। पहले भी कराया था ना तुझे, एथिलीन डाइएमीन। पूरा नाम क्या है? इथाइलिन डाइएमीन, CH2CH2। It is didentate, both nitrogen atom act as donor. यूनिडेंटेड लिस्ट लिख लिया? क्या मैम? यूनिडेंटेड वाली लिस्ट कंप्लीट कर ली? यस मैम। बेटा तूने मुझे PDF बना के ही भेजा था ना टेस्ट का? यस मैम। मैं चेक कर दूंगी, PDF में थोड़ा इजी रहता है। सिंपल पिक्स खींची थी क्या PDF था? एक बार मैं चेक कर लूँ, PDF बना के भेज देना। कब भेजा? हाँ PDF ही है, ठीक है। अच्छा, इथाइलिन डाइएमीन हो गया। अब ट्राइडेंटेड, ये सारे कर चुके हम लोग। टरडेंटेड भी बोलते हैं इसको। डाइइन, डाइइन लिखते हैं बेटा इसको। पूरा नाम क्या है? डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। CH2, CH2, NH, CH2, CH2, NH2, NH2, डाई एथाइलिन ट्राइएमीन। 3 डोनर एटम्स हैं। Then you have hexadentate EDTA। किया था ना ये कल भी एग्जाम्पल। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी उस दिन कर लिया था, तो उसको अलग से एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखियो कि इसकी डेंसिटी 6 होती है, ठीक है? रब कर दूं? यस। अब केटायनिक लिख ले, एक दो हैं। NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। जो पॉजिटिव होते हैं उनके पीछे EM लगाते हैं।
NO2 plus, it is nitronium ion, nitronium. एंड N2H5 प्लस, इसका नाम है हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम आयन। ठीक है बेटा, समझ आई? यादविंदर? यस चल बेटा आज इतना ही कंटिन्यू कर दें, मैं ना थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, मेरी IIT एडवांस की क्लासेस लग रही हैं उसमें, तो मैं बस फिर तुझे थोड़ा सा संडे को ज़्यादा कवर करा दूंगी, ठीक है, या अगले हफ्ते में। चल ओके बेटा, पढ़ लेना, बाय, गुड नाइट।